পিঠে ভালো তো Was a very respectable, admirable person. Growing up, living all of us together has been a lot of fun in many ways. From him telling us not to eat junk food from outside, or his amazing health habits, where telling us to wake up early in the morning, go work out, eat good food. He's responsible in shaping us as good people today, and we're really thankful for his presence in our life. We're really thankful to him. We're grateful that he helped us become the kind of people we are today. One thing that Dadaji would always tell me is work is worship. For him, I think he was so dedicated, he was so committed to anything that he did, even until the last few days or last few months. I think he actively wanted to work. He was also very active, so I think if he wanted to do something, he went on it and did it. And that's one trait that I always want to carry on from him and take from him. One of the very fond memories that I have of him very recently is he started playing with Kian and Kiara a lot, and anytime I'd be talking to Mama and Papa, he would always complain कि मुझे भी बात कराओ Kian Kiara से अकेले अकेले मत करो. And I've never even seen him play with Rohini and I or any of the other grandkids that much as he played with his great grandkids. So I'm so blessed that both my kids got to see him, got to take his blessings, and I hope wherever he is today, I hope he's very happy. He's looking down on us and giving us lots of blessings. And I'm so thankful to my parents, to my buas, and to everybody who did so much for him, gave him so much love and respect, and to a point where he truly lived a king-size life
And we as grandkids will always make sure that his legacy of hard work, dedication, work ethic will live on in us always and forever. It's very sad, but he lived an amazing 90 plus years, and here's to celebrating his life. We love you, Dadaji. We miss you a lot. I miss you, Big Daddy. I love you, Big Daddy. I didn't spend a lot of time with Dadaji, but from the few years that I did know him, he definitely left a positive impact on my life. I will always remember him and admire him for his strong sense of purpose, for his selfless service to the organization DAV that he cared so deeply about, and for his incredible discipline. I'll always take that with me wherever I go. I think he was a really powerful man, and I think one thing he's taught all of us is a lot of discipline, to live a life of discipline. If it was getting up early in the morning, making your own tea, just knowing your diet, just knowing when to work, how much to work, keeping everything in balance. And I think he played a really important part in the family of keeping that balance. Go. I love you, Big Nanu. I like to play gun game with you. I miss you. यूं तो हजारों साल से है आदमी का वजूद, निगाहें फिर भी तरसती हैं आदमी के लिए। मेरे प्यार साहब इस बात पे पूर्ण रूप से खरे साबित होते हैं। उनका जीवन एक भिन्न प्रकार का था, बड़े शांत, सहज, मृदुभाषी, लेकिन गहरी सोच वाले व्यक्ति थे। उनमें खोखलापन बिल्कुल नहीं था, ना ही वो किसी प्रकार के शोर शराबे में विश्वास करते थे। जब कभी कोई बात करते थे तो उसके बड़े गहरे अर्थ हुआ करते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़ौक़े दरिया से कहता है समुद्र का सबूत, कि जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। उनको फालतू बात करना कभी अच्छा नहीं लगता था। वो सदैव सच बोलते थे और इसलिए बड़े स्पष्ट और सीधी बात करते थे। किसी प्रकार का संशय या भय उनकी बात में नज़र नहीं आता था। इसीलिए ही उनको लोग बहुत प्रेम करते थे। कई लोग उनसे भय भी खाते थे, क्योंकि उन्होंने सच मुंह पे कह देना है। मुझे इतना याद है कि मेरे लिए वो मेंटर थे। मैंने तो बीए करने के बाद लॉ किया, प्रैक्टिस करने लग गया, और परंतु मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तेरे में मैं एक अध्यापक देखता हूँ। तो मैंने डीएवी कॉलेज जालंधर में अध्यापन शुरू किया। मैं ये कह सकता हूँ कि उन जैसे बहुत कम व्यक्ति आज के युग में होंगे, क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही डेडिकेटेड और अपने काम के बहुत धनी थे, और हमेशा दूसरों से अपने ही अलग विचार रखते थे, जिसको सर्वमान्य माना जाता था। मैंने उनको सदैव लोगों से सम्मान पाते हुए देखा है। आज तक कभी किसी को उनकी आलोचना करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कभी अपने कोई विवादास्पद व्यवहार किया ही नहीं। मैं आज उनकी अंतिम विदाई के अवसर पर अपनी श्रद्धा और भाव से पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे जीवन का वो एक साथ थे। मुझे उन जैसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, इसीलिए कहता हूँ, ऐसा कहाँ से लाऊं तुझसा कहूँ जिसे। I'd like to speak a few words in remembrance of my fond Manaji. From my conversations with him, I could understand that he came from very humble beginnings. He lost his parents quite early in life and he had no siblings to fall back to. So, from the beginning, life was always a challenge for him. Yet, he was a man of perseverance. He worked hard and he created a lasting legacy.
Nanaji was a man of sheer discipline, something attributed to his time in the NCC. He even mentioned of his participation in the Indian freedom movement, which again showcased his courage and sheer willpower. He was an avid traveler. He loved traveling within India and abroad. He would describe his adventures in great detail. He was a foodie. He would, again, wherever he traveled, he would try the local delicacies, and he was quite the critic when it came to describing food items, or swad as he called it. His stories painted a picture of simpler times, something that he passed on to us with great fondness. He was a simple man, and he always, even till recently, he was always keen on learning new things. He would always get his newspaper in the morning. He wanted to stay updated with current affairs, and that just describes the sort of man he was. We will always remember him, and we will remember the many traits he possessed, discipline and willpower being a few of the many good traits he had. Nanaji, you're an inspiration to all of us, and we miss you. Hello. Now I would like to recite a small poem dedicated to Nanaji. Nanaji, आपकी राह पर चलेंगे, सच के रास्ते पर रहेंगे। आपकी मुस्कान का नूर रहेगा, हर दिल में आपका नाम बसेगा। आपकी सीख हमें राह दिखाएगी, हर मुश्किल में हिम्मत बढ़ाएगी। सादगी और अनुशासन की ये कहानी हर पीढ़ी को देगी एक नई निशानी। अलविदा नानाजी, आपका सफ़र महान, दुआ है रब से मिले सुकून का जहां। आपकी यादों से महकेगा ये जहां, आपका आशीर्वाद रहेगा सदा यहाँ। धन्यवाद। अब स्क्रीन हैंग हो रही है, स्क्रीन हैंग हो रही है मेरी। वो तो होगी हैंग, जैसे स्पेस Thank you, Mr. Richard. जैसे स्पेस भरेगा वो तो होगी। So Mr. M.L. Sethi was our Nanaji. We are gathered here today not to mourn but to celebrate the extraordinary legacy of a remarkable man. Many of you here today know more about his professional accomplishments than we ever could. I consider myself extremely fortunate to have had two grandfathers who were the stalwarts in the field of education, men who dedicated their lives to shaping society for the better. I was too young to fully understand or comprehend the grandeur of my Dadaji, Mr. Dawailal Ji. I came to know him through countless stories shared by Nanaji. They were friends since college and spent most of their professional lives together in DAV. Whenever I would sit with him, he would share anecdotes of their visits to the remotest of villages trying to find lands for new schools. Most of their photo albums are not with family members, but of them performing Bhumi Pujans on barren lands that have now become flourishing DAV institutions. He was the kind of man who sacrificed his personal life for the betterment of society. Personal gain did not matter to him. He found contentment in making the world a better place. His dedication and vision are the foundations of the institutions that continue to thrive today. On the personal front, I witnessed two distinct sides to his personality, and these facets of his personality seem to pivot around the passing away of my Nani, Sudesh Sethi ji. Before her death, he was the no-nonsense figure in the family, saying no to absolutely everything and anything fun. So all the grandchildren would invariably go to the Nani for anything they wanted. Knowingly he wouldn't indulge us. But after her passing, he developed a softer side. He became someone who wanted to sit with us, who wanted to talk about our lives and offer his wisdom. I vividly remember one instance where I was visiting him before I went to the States to college. He grabbed my hand, took me to a corner of the house, and told me the following. He said, "You are the grandson of Mr. Dawailal Ji, and you have a very big legacy to follow."
There will be many distractions in the States, but you must remember the bigger picture and make sure you do your family proud. And now he said that there are 3 things that you absolutely have to stay away from in the US. First being drugs, second being alcohol, and third, to my surprise, being girls. He said if you stay away from all these 3 things, your life would be in a better place. I later found out that every child in the family had received his one-to-one lecture before they went for their respective colleges. As kids, we often dismiss these lectures, but as we grow older and gain perspective, we realize their profound wisdom. We realize that it's easy to make money or achieve personal success, but leaving a lasting impact on the world requires decisions guided by honesty, integrity, and righteousness. His life was a testament to the fact that true greatness lies not in personal accolades, but in enduring positive change we bring to the world among us. Thank you. I'll just say one thing before we end. It is said that Lord Krishna gave his toughest battle to Arjuna, who he knew he was his strongest soldier and had the capability to tackle it. And after hearing stories about Nanaji's life, seeing his sacrifices and witnessing his discipline and mental fortitudes, I can tell you that he was one of God's strongest and most favorite people, because he took them head on and then came out as such a successful person. Thank you. अभी परिवार के सदस्यों ने, बच्चों ने अपनी भावाभिव्यक्ति प्रकट की, बहुत अच्छा लगा। इसी श्रृंखला में आर्य समाज कीर्ति बिहार से हमारे शास्त्री जी हुए डॉक्टर यशपाल शास्त्री जी। निवर्तमान पवित्र आत्मा श्रीमान मदनलाल सीकरी जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आर्य समाज अशोक बिहार के धर्माचार्य माननीय सतीश शास्त्री जी, उनके सभी प्रियजन और संबंधीजन, एक सरोवर पर राजहंस बैठा करते थे। अचानक राजहंसों को पता नहीं क्या सूझी, उस सरोवर को छोड़ करके उड़ करके जाने लगे। लोगों ने कहा, हे राजहंसों, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों छोड़ करके जा रहे हो शानदार सरोवर? राजहंस कहने लगे, हमें तो कोई हानि नहीं है, यहाँ से छोड़ करके उड़ करके जाएंगे, कहीं दूसरे सरोवर पर बैठ जाएंगे। सज्जनों, मदनलाल सीकरी जी के जाने के बाद उनको तो कोई दुख नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था से आत्मा शरीर को छोड़ता है, अगले जन्म को प्राप्त हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से यत्रापि कुत्रापि गता भवन्ति हंसा महीमण्डल मण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। राजहंसों को तोड़कर जाने में कोई हानि नहीं होगी, लेकिन शोभा फीकी इन सरोवरों की हो जाएगी जिन पर राजहंस बैठा करते थे। मदनलाल सीकरी जी के जाने से उनको तो कोई हानि नहीं है, लेकिन इस डीएवी परिवार की शोभा आज फीकी हो गई है। वो एक शानदार जीवन जी करके हमारे बीच में से गए। जैसा डीएवी आंदोलन का मूल भाव रहा, धर्म की स्थापना, वो धर्म के प्रति बहुत मजबूत थे।
माता सुदेश सीकरी जी जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी याद में जब जब 2 जनवरी को यज्ञ होता था तो परिवार में बच्चों को मैं जनेऊ करवाता था, तो बाहर सीढ़ियों पर विदा करते हुए कहा करते थे, शास्त्री जी आप बहुत अच्छा करते हैं, हमारे पंजाबी तो जनेऊ छोड़ते चले जा रहे हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों को जनेऊ पहनवा देते हैं। एक शानदार जीवन के साथ हम सब लोगों ने उनको विदाई दी। धन्यवाद। बहुत अच्छा अल्प शब्दों में बहुत ही मार्मिक भाव व्यक्त किए शास्त्री जी ने। एक कवि कहता है, हंस के दुनिया में मरा कोई कोई रोकर मरा, हंस के दुनिया में मरा कोई कोई रोकर मरा, जिंदगी पाई मगर उसने जो कुछ होकर मरा। जी उठा मरने से वह, जी उठा मरने से वह, जिसकी उठाने में ही थी नजर, जिसने गिराने ही को पाया वह तो सब खोकर। आदरणीय श्री शेखरी जी हमेशा ही दूसरों को उठाने में लगे रहे, दूसरों को सहयोग देने में लगे रहे। जब तक उनका जीवन रहा तब तक ऐसे श्रेष्ठ भाव श्रेष्ठ विचार उनके जीवन में आते रहे। वो एक सच्चे पिता थे, वे एक सच्चे भाई थे, वे सच्चे मित्र थे और सच्चे संबंधी थे और एक सच्चे ईमानदार कार्यकर्ता रहे, समाज सेवी रहे। जो भी समाज में जुड़कर के जिम्मेदारियां मिलती हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को उन्होंने आत्मीयता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ निभाया। डीएवी मैनेजिंग कमेटी में जब तक रहे तब तक उनकी छवि साफ सुथरी बनी रही और अभी अंत में आदरणीय श्री पूनम सूरी जी इनके साथ में जुड़कर के जो भी स्कूल के लिए कॉलेज के लिए बेहतर हो सकता था, अच्छा हो सकता था, वो हमेशा करते रहे। इसी श्रृंखला में अपने डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट के वरिष्ठ अधिकारी प्रेसिडेंट आदरणीय श्री पद्मश्री पद्म भूषण श्री पूनम सूरी जी आए हुए हैं, जो हमेशा ही डीएवी परिवार के साथ जहाँ भी कोई ऐसा सुख का अवसर आता है हमेशा जाते रहते हैं। वे भी परिवार में उनका बहुत ही निकटतम घनिष्ठ संबंध रहा है, जुड़ा है और इस दुख की घड़ी में वे यहाँ आए हुए हैं। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय सूरी साहब आए। हमारे अपने प्यारे डीएवी के वाइस प्रेसिडेंट श्री सेकरी जी हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कहाँ गए, किधर गए, पता नहीं। तो इसलिए आओ मेरे साथ मिलकर हम एक बार उनके लिए प्रार्थना करें। जो मैं मंत्र आपको बोलने के लिए कहूंगा वो हमारे स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का मंत्र नंबर 1 है और अर्थ जिन लोगों को मालूम है, जो डीएवी से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, जो शायद आप सभी हैं, उनको तो मालूम है कि इसका अर्थ बड़ा सरल कि भगवान अगर मुझ में कोई बुराई है, कोई दुर्गुण है, तो भगवान उसे खुद ब खुद दूर कर दो और जो अच्छाइयां हैं वो लाकर मेरी राह में खड़ी कर दो। तो प्रार्थना हम करेंगे कि हमारे सेकरी जी जहां पे भी गए हैं, अगर कोई दुर्गुण थे, हमें नजर नहीं आए जिंदगी में, लेकिन अगर कोई थे तो भगवान को दूर कर देना और जितनी अच्छाइयां हैं वो लाकर इनकी राह में खड़ी कर देना। ये जो पावन मंत्र है, ये महात्मा हंसराज जी का भी जब अंतिम दिन आया तो उन्होंने महात्मा आनंद स्वामी जी, जो बाद में महात्मा आनंद स्वामी बने, तब खुशहाल चंद जी को कहा कि ये मंत्र मुझे 21 बार पढ़कर सुनाओ।
तो उनके लिए तो महात्मा जी ने 21 बार पढ़कर सुनाया। हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब अगर बड़े दिल से ये मंत्र पढ़े तो ये मंत्र उनके लिए सार्थक होगा, और जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो लाकर जहाँ पे भी कहीं पे वो होंगे उनके लिए वो उनके सामने आ जाएंगी। दूसरी बात कि जब सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो सामूहिक प्रार्थना में बहुत असर होता है, बहुत ताकत होती है, लेकिन God does not look at the oratory of your prayer. What He looks at is the sincerity of your prayer. तो इसलिए जरा थोड़ी सी पीठ सीधी करके बैठ जाएं, आंखें बेशक हल्की सी मूंद लें। जिनको मंत्र आता है मेरे साथ मिलकर बोले, बड़े प्यार से बोले, बड़ी भावना से बोले, और जिन्हें नहीं आता वो जो अर्थ मैंने बताया है आपके हृदय में वो अर्थ साथ साथ गूंजे। आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं धन्यासुव। मेरे साथ मेरे कुलीग्स डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से लोग आए हुए हैं। हम सब उनको बड़ी देर से जानते हैं, मेरे से पहले से भी बहुत लोग जानते थे। मैं 1997 में डीएवी में आया था और तब उन्हें डीएवी के हेड ऑफिस में मिला, और तब से ऐसा एक रिश्ता सा हो गया, एक जिसको आप कह सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट। ये मेरे को दिल करे जब भी कोई बात हो तो मैं उनसे जाके पूछ के आगे हल निकाल दूं प्रॉब्लम का। तब मैं सेक्रेटरी होता था, वो भी सेक्रेटरी थे, वो बाद में एलिवेट होके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, मैं सेक्रेटरी का सेक्रेटरी रहा। और जब पिछले 2012 में जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करी, उनके पास गया था मैं उन्हें रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें और एज वाइस प्रेसिडेंट हमें गाइड भी करें, अपना आशीर्वाद भी देते रहें। You see, I found in that man a man who was always looking for efficiency. He wanted perfection. जरा सी बात इधर से उधर हो जाए उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ तो कई बार इंटरव्यूज में बैठते थे, और इंटरव्यूज में अगर कैंडिडेट जो है पूरी तरह तैयार होकर नहीं आया तो जो टीचर यहाँ बैठी हैं मैं उनको बता दूं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। भाई जब तेरे को मालूम है यू आर कमिंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाई आरंट यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? ही कुड नॉट टॉलरेट इट। वो कहा करते बात करने की जरूरत नहीं है, इसको बजाओ। The person is not prepared, he doesn't know anything. He wanted efficient people. He wanted proficient people. He wanted people who were looking for the absolute perfection. जरा सी, और अगर आप देखें उनकी ड्रेसअप के अंदर भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जब ऑफिस आते थे तो ऑफिस की ड्रेस में आते थे और अच्छी तरह से अपने आप को रखते थे। खाना पीना भी उनका बिल्कुल सही होता। मैंने तो उनसे बहुत कुछ पाया इंटरव्यूज में। एक उनको मैं और बात बता दूं, उनकी जो नॉलेज ऑन, जो मेरे डायरेक्टर्स बैठे थे मेरे साथ और मेरे ऑफिस बेयर्स मेरे साथ बैठते हैं उस इंटरव्यू में, ये भी सब सिर के हिल रहे हैं कि ठीक बात है, ठीक बात है। तो उनकी जो नॉलेज ऑन CBSE रूल्स एंड बायलॉज कमाल थी। जब हम सवाल पूछते थे तो CBSE में जब सवाल आता था तो मैं उनकी तरफ देखता था कि जब आप जरा चालू हो जाए। His rules, regulations, knowledge was tremendous, and his idea was not कि मैं दूसरे को कैंडिडेट को आउट कर दूं. His idea was to help the candidate, but to find out the truth. उसको आता भी है नहीं आता। अगर आता ही नहीं है तो
करने का। तो ऐसे सेक्रेटरी साहब उनमें ऐसा गुण मैं चाहता हूँ कि भगवान करे मुझ में भी आए। और मुझे जब हम कल ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकल रहे थे तो हमारे एक रीजनल डायरेक्टर पवन कुमार जी ने मुझे बताया कि जब वो निन्योला में प्रिंसिपल थे और ये वहां पे एक टीचर थे, ये 6 महीने उनके साथ बैडमिंटन खेलते थे। किसी का प्रिंसिपल, आजकल जो प्रिंसिपल यहाँ बैठे हैं किनके पास टाइम है बैडमिंटन खेलने के लिए अपने टीचर के साथ? ये देखो, he found an individual, he wanted to love an individual, और उस लव के थ्रू उसको प्रोफिशिएंसी की तरफ लेके चले जाते थे, उसको आगे आगे बढ़ाते रहते। सेक्रेटरी साहब का एक और मैं आपको गुण बताऊं जो मैंने नोटिस किया, दैट वाज हिज ट्रूथफुलनेस, सत्य। इतना जबरदस्त ट्रूथ था कि कभी कभी चुपता भी था। मतलब ट्रूथ शुड बी देयर, लेकिन इट वाज ट्रूथ टिल इट हर्ट्स। पूरी तरह से सच, अगले को अच्छा लगे बुरा लगे मुंह पे कह दे, क्योंकि सच है और बात बिल्कुल ठीक है। दयानंद के सिपाही थे, सत्यार्थ प्रकाश के अनुयायी थे। अब सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने कई ऐसी बातें लिखी है जो लोगों को चुभती है, लोगों को लगता है बुरा है, लेकिन है नहीं। मेरी उनसे एक बात हो रही थी तो कह रहे थे कि मैं ऐसी ऐसी बातें कह देता हूं तो कुछ को बुरा लगता होगा। मैं कहीं लगे, मैंने उनको ये कहा, मैं कहीं अगर किसी का घर लुट रहा हो और हम खड़े यहां देख रहे हो कि भाई उसका घर लुट रहा है, तो क्या ये हमारी गलती नहीं होगी? हमें जाके उसे बचाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई तेरा घर लुट रहा है। तो अगर किसी का कैरेक्टर खराब हो रहा है और आप उसको बता रहे हो कि तो ये गलत काम कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? आप उसको बचा रहे हो, बचाना आपका फर्ज है। स्वामी दयानंद जी तो कहते थे अगर नहीं बचाओगे, नहीं बताओगे उसको, यू आर फॉलोइंग फ्रॉम कैरेक्टर योरसेल्फ। तो ये उनका एक बहुत बड़ा गुण था, सत्य का, बहुत बड़ा। सच के ऊपर हमेशा खड़े रहना, सच्ची बात करनी है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती थी कि हमारे डायरेक्टर्स भी बेचारे चुप हो जाते थे, मेरे पास आते थे कि ये सेक्रेटरी साहब ने झाड़ दिया। मैंने कहते थे गलती नहीं थी हमारी, हमने गलत नहीं किया था, लेकिन जो हमारी को रिपोर्ट आई हमने उसके हिसाब से किया। वो कहते थे नहीं, लेकिन ये सच नहीं है, सच पता करो। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहते हुए डीएवी के अंदर मेरे ख्याल में उनके बाद शायद एक ही और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बने, उसके बाद दैट पोस्ट वाज अबॉलिश्ड। तो एज एन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आल्सो that man kept the DAV alive and protected at every step. As a matter of fact, let me tell you a little secret. DAV college managing committee charges a very small legal percentage as an administrative charge. This administrative charge was started by Shri